Hello students, welcome back to our channel NEET Mantra. I am Prince Sharma, your biology faculty and mentor. So students, in this video we are going to have a quick revision of chapter environmental issues. If you missed our previous videos, link is in the description, and for more videos like this, please do subscribe to our channel. So before starting this video, I want to remind that all important dates from this topic are included in a separate video whose link is in the description. So let's start now. What is pollution? Pollution is any undesirable change in physical, chemical or biological properties of air, land, water or soil. The substance that cause undesirable change are called pollutants. So here I take example of air. The main composition of air include nitrogen, oxygen and carbon dioxide, which is in very low amount. So we are using automobiles and we are burning fossil fuel in it. Due to this, the amount of carbon dioxide and other harmful gases like कार्बन मोनोऑक्साइड आर इंक्रीजिंग इन एनवायरनमेंट। और इनके इंक्रीज होने से जो कि एक अनडिज़ायरेबल चेंज है, जो हमारी एयर कॉम्पोजिशन है वो ख़राब हो रही है और उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो इंक्रीज गैसेस हैं जो कि हार्मफुल हैं, यही क्या है, पोल्यूटेंट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। Thermal power plants, smelters and other industries release particulate and gaseous air pollutants along with harmless gases such as nitrogen and oxygen etc. थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर्स और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पार्टिकुलेट और गैसियस एयर पोल्यूटेंट क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं। और ये हम एनवायरनमेंट में ना जाएं, तो इनको एनवायरनमेंट में जाने से रोकने के लिए हम कुछ टेक्निक्स कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव ओवर 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। इट हैज़ electrode wires that are maintained at several thousand volt which produce corona that release electrons. These electrons attach to dust particle giving them a net negative charge. The collecting plates are grounded and attract the charged dust particles. The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में काफ़ी इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं जिनका जो वोल्टेज होता है वो थाउजेंड्स में होता है और इनसे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पर्टिकुलर डस्ट पार्टिकल से जाके अटैच हो जाते हैं, जिनसे उनको नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। और ग्राउंडेड जो कलेक्टिंग प्लेट है वो ग्राउंडेड होते हैं, मतलब नीचे रखी हुई होती है और उनमें हाईली पॉजिटिव चार्ज होती हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे वो क्या है, उन प्लेट्स पे आ जाते हैं और बाहर एनवायरनमेंट में नहीं जाते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एयर है, प्लेट्स से जो एयर गुजरेगी उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर फास्ट होगी तो जो कलेक्टिंग प्लेट्स हैं वो क्या है, पूरी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी डस्ट पार्टिकल्स को। And for gaseous air pollutant we have scrubber. Scrubbers can remove gases like sulfur dioxide which is harmful. In a scrubber the exhaust is passed through a spray of water or lime. तो स्क्रबर में जो एग्जॉस्ट है वो किससे पास होता है, वाटर और लाइम से पास होता है, और उसके साथ रिएक्ट करके ये जो गैसेस हैं वो हम एनवायरनमेंट में जाने से रोक लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू CPCB, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particulate size less than 2.5 micrometer can cause greater harm to human health. These fine particles can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory systems irritations, inflammation and even damage to lungs, and they can even cause premature death. तो जो ये पार्टिकुलेट मैटर है जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये क्या है, लंग्स में डीप तक जा सकता है और बहुत सारी बीमारियां कर सकता है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। Now we talk about automobiles, and as we all know, automobiles are main cause of atmospheric pollution in metro cities. So to reduce this pollution, we are using some techniques and instruments like catalytic converter. Catalytic converter have expensive metals like platinum, palladium and rhodium which act as catalyst, and they are fitted into automobiles for reducing emission of poisonous gas. तो कैटेलिटिक कन्वर्टर में आपको याद रखना है कि एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जैसे प्लेटिनम, प्लेडियम एंड रोडियम, और ये क्या करते हैं, जो एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सो as the exhaust passes through catalytic converter, unburned hydrocarbon are converted into carbon dioxide and water, and carbon monoxide and nitrogen oxide are converted into carbon dioxide and nitrogen gas. तो जैसे ही जो एग्जॉस्ट है वो कैटालिटिक कन्वर्टर से पास करेगा तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस में, जो कि लेस हार्मफुल है कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. And to reduce this pollution, all the buses of Delhi are converted to CNG by the end of 2002. तो दिल्ली में 2002 के एंड तक सारी जो बसेस हैं वो CNG के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, उनमें पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है. ठीक है. और CNG का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि इसको अडल्ट्रेटेड नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें किसी भी टाइप की मिलावट नहीं की जा सकती. ये एक चीप फ्यूल है और क्या है, इकोनॉमिकली भी क्या है, गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है. बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपको क्या है, बहुत लंबी पाइपलाइंस बिछानी पड़ती है, जो कि एक क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं है, मतलब उसमें काफ़ी खर्चा होता है सरकार का. एंड देयर आर सम रूल्स, वन ऑफ विच इज़ यूरो 2nd norm. फॉर एग्जाम्पल, stipulate the sulfur will be controlled at 350 ppm in diesel and 150 ppm in petrol. Aromatic hydrocarbon are to be continued at 42% of the concerned fuel. The goal according to the roadmap is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel and bring down the level to 35%. तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसमें यूरो 2nd एक रूल है जिसमें क्या है, हमने जो सल्फ़र का अमाउंट है 350 ppm डिसाइड किया है डीजल में और 150 ppm डिसाइड किया है पेट्रोल में. और एरोमेटिक हाइड्रोजन कोई भी फ्यूल हो उसमें 42% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और हमारा जो गोल है वो ये है कि 50 ppm हो जाए सल्फ़र पेट्रोल में, है ना, और क्या है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो कितना आ जाए, 35% तक आ जाए. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट the Air Prevention and Control Act. It came into force in 1981 and it was amended in 1987, which include noise as air pollutant. तो जो Air Prevention and Control of Pollution Act आया था वो 1981 में आया था और इसमें अमेंडमेंट कब आया था, 1987 में, जिसमें नॉइस पोल्यूशन को भी इसमें क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था. ओके. Next we talk about water pollution and its control. The government of India has passed the Water Prevention and Control of Pollution Act in 1974 to protect the water resources. The sewage that comes out from our houses, offices makes the domestic sewage. जो सीवेज हमारे घरों से, ऑफिस से आता है वही डोमेस्टिक सीवेज बनाता है. एंड अ mere 0.1 impurity makes domestic sewage unfit for human use. And this 0.1 impurities include suspended solid like sand, slate, clay, colloidal materials like fecal matter, bacteria and paper fibers, and dissolved material like nutrients, nitrate, ammonia, phosphate, sodium, calcium. तो डोमेस्टिक सीवेज में अगर 0.1% भी इम्प्योरिटी है तो वो अनफिट है ह्यूमन यूज़ के लिए. और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें सस्पेंडेड सॉलिड, कोलोइडल मटेरियल और डिजोल्व मटेरियल तीनों टाइप के पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ अब एक टर्म मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे, जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो जैसे कि आपने क्या किया, डोमेस्टिक सीवेज में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट था. अब वो क्या है, डोमेस्टिक सीवेज के साथ वाटर बॉडी में चला गया. तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए क्या है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी बाय बैक्टीरिया इज़ नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. The microbes that decompose organic waste in water molecules consume a lot of oxygen that result in sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge. This decrease in dissolved oxygen in water bodies is called BOD और biological oxygen demand. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक सीवेज है, सीवेज ओपनिंग है, वो क्या है, रिवर में एक पॉइंट ए पर खुल रही है. तो पॉइंट ए पर जो ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पे माइक्रोब्स हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर. तो यहाँ पे जो नेचुरल क्या है, वहाँ की फोना होगी, जैसे कि फिशेस वगैरह होगी, वो वहाँ पे नहीं रहेंगी, वो क्या है, वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है. द मेन इफेक्ट इंक्लूड मोर्टेलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर. तो जो ये डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी, इससे जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है वहाँ पे फिशेस हैं उनकी डेथ हो जाएंगी और अदर एक्वेटिक जो क्रिएचर्स हैं उनकी भी डेथ हो जाएंगी.
Next we talk about algal bloom. The presence of large amount of organic nutrients in water cause excessive growth of planktonic or free floating algae called algal bloom. Due to this, color of water bodies get changed. This may cause deterioration of water quality and fish mortality. Water hyacinth, which is Eichhornia crapsis, is the world's most problematic aquatic weed and it is also known as terror of Bengal. तो अगर जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गए किसी भी वाटर बॉडीज़ में, तो वहाँ पे क्या है, प्लैंक्टोनिक ग्रोथ क्या है, ये फ्लोटिंग एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे एल्गल ब्लूम वहाँ पे डेवलप हो जाएगा और इससे क्या होगा, वाटर बॉडीज़ का कलर चेंज हो जाएगा और इससे क्या है, वाटर क्वालिटी भी डेटोरेट हो सकती है और फिश मोर्टेलिटी भी इंक्रीज़ हो सकती है। और न्यूट्रिएंट अमाउंट प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे वीड ग्रो करेंगे, जिसमें जो सबसे मेन वीड है वाटर वीड, विच इज़ वाटर हाइसियन, और ये क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर लेगा वाटर बॉडीज़ में से, और क्या है, बहुत सारी फिशेस की डेथ हो जाएंगी। और सबसे प्रॉब्लमेटिक वीड ये इसलिए है क्योंकि ये क्या है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, ऑफसेट से ग्रोथ करता है, वेजिटेटिवली प्रोपगेशन करता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन निकाल लेता है वाटर बॉडीज़ में से, और इस वजह से वहाँ पे जो बाकी फ्लोरा फोना है उनकी डेथ हो जाती है। Next we have biomagnification. The increase in concentration of toxicant at each successive trophic level is called biological magnification. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जो कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है और वो उनकी बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं और उससे क्या है, उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एक बायोमैग्निफिकेशन का एग्जांपल हम डीडीटी का एग्जांपल लेते हैं, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि वाटर में डीडीटी कितना प्रेजेंट है, 0.003 ppm। अब जू प्लैंक्टन्स में ये कितना हो जाता है, 0.04 ppm। फिर स्मॉल फिशेस में ये कितना हो जाता है, 0.5 ppm। फिर लार्ज फिश में कितना हो जाता है, 2 ppm। और फिश ईटिंग बर्ड्स में कितना हो जाता है, 25 ppm। तो आप देख सकते हैं कि ये फूड चेन में क्या है, मैग्नीफाई करता जा रहा है और ये क्या है, नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, तो ये क्या है, इनके टिश्यूज़ में स्टोर हो जाएगा और एज अ टॉक्सिक केमिकल वर्क करेगा और उनके सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। उसके बाद जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं उनको डीडीटी से ये प्रॉब्लम हुई थी कि जो उनके एग्स हैं, डीडीटी की वजह से जो उनके एग्स हैं वो क्या है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे थे, उनका जो शेल है वो क्या है, बहुत ही वीक बन पा रहा था और इससे बर्ड्स की भी क्या हो गई थी, जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो गई थी। उसके बाद डीडीटी को इंडिया में बैन कर दिया गया। एंड हियर इज़ वन मोर एग्जांपल विच ऑफ मरकरी। मरकरी पॉइजनिंग की वजह से एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होता है जिसको मिनियामाटा डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जिनके बायोमैग्निफिकेशन से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्या है, हो सकते हैं। Next we have eutrophication. Eutrophication is the natural aging of lake by biological enrichment of its water due to addition of nutrients such as nitrogen and phosphorus that encourage the growth of aquatic organism, and the accumulation of organic remain in the course of time lead to shallowing of lake. The pollutants from man activities such as effluents from the industries and home radically accelerate the aging of lake. This phenomena is called cultural or accelerated eutrophication. The main contaminants include nitrate, phosphate that include act as plant nutrients. तो देखिए, यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें कोई भी लेक जो होता है वो धीरे धीरे उसकी एज होती है और वो धीरे धीरे क्या है, मैजिक कंडीशन में चला जाता है। जो हमने सक्सेशन में पढ़ा था, हाइड्राज कंडीशन टू क्या है, मैजिक कंडीशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है लेक का वो क्या है, बढ़ने लग जाता है और क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स उसमें आने लग जाते हैं, जैसे कि हमने सक्सेशन में स्टडी किए थे, और धीरे धीरे उस लेक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पर नेचुरली ये काफ़ी हज़ारों सालों में होता है, बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज है उसकी वजह से जो ये न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये क्या है, वाटर बॉडीज़ में बहुत स्पीड से जाने लगे हैं और ये जो यूट्रोफिकेशन है बहुत स्पीड से होने लगा है। इसी को कल्चरल एंड एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन बोला गया है। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाटर बॉडीज़ के अराउंड जाके क्या है, कपड़े धोते हैं, और जो हम डिटर्जेंट और
क्या है साबुन वगैरह यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादातर नाइट्रेट या फॉस्फेट होते हैं, जिसकी वजह से एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन होता है लेक्स का, और इस तरीके से हम अपनी सारी वाटर बॉडीज़ का नुकसान कर रहे हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, I want to take an example here of heated और thermal waste water flowing out of electricity generating unit। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट है वहाँ से क्या है हीटेड वेस्ट वाटर आता है, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म पानी आता है, और इससे क्या होता है कि ये जो थर्मल वेस्ट वाटर है एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर एंड मे एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजीनियस फ्लोरा एंड फोना। तो ये जो थर्मल वेस्ट वाटर आ रहा है थर्मल पावर प्लांट से, ये बहुत ही गर्म होता है, और जहाँ पे भी जिस भी वाटर बॉडी के एरिया में इसको डंप किया जाता है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो क्या है माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इससे क्या है किसी और जगह पे उनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो सकती है, बट उनका जो नेचुरल इकोसिस्टम था जिसमें वो पहले रहते थे वो क्या है इस थर्मल वेस्ट वाटर की वजह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट। Solid waste refer to everything that goes out in trash. Sanitary landfills are adopted as substitute for open burning dumps. तो जो सॉलिड वेस्ट है आप सब समझते हैं सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जो भी चीज़ ट्रैश में जा रही है वो सॉलिड वेस्ट है। इवन एक प्लास्टिक की बोतल एक सॉलिड वेस्ट है ना। तो पहले क्या करते थे हम, जो ये सॉलिड वेस्ट है इसको क्या है बर्न कर देते थे। बर्न क्यों कर देते थे, अगर आप कभी भी अपनी सिटी से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे क्या है डंपिंग साइट्स होती हैं। डंपिंग साइट्स में क्या होता है या तो कचरे को बर्न किया जाता है या फिर उन्हें क्या है गड्ढे खोद के उनमें दबाया जाता है। तो बर्निंग का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि इसको बर्न कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, और उससे प्रॉब्लम क्या थी कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था कि आप बर्न कर रहे हैं तो उससे धुआं होगा, उसमें गैसेस होगी, पार्टिकुलेट मैटर होगा, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा। फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि सैनिटरी लैंडफिल्स क्या है गड्ढा खोदते हैं और उसमें दबा देते हैं। पर उससे क्या नुकसान हुआ कि जो आपका ग्राउंड वाटर है, ये जो कचरा है धीरे धीरे उस ग्राउंड वाटर में सीप करने लग गया, केमिकल्स उसमें सीप करने लगे और हमारा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होने लग गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है सिर्फ ये है कि हम जो ह्यूमंस हैं वो अपनी जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस लाएं, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें, हम अलग अलग सेक्शंस बनाएं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, और उस तरीके से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें ताकि उसको रिसाइकिल करके हम यूज़ कर सकें और हमारा वेस्ट क्या है कम हो सके। नहीं तो एक टाइम पे हमारा इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने जैसे नॉर्वे हैं वहाँ पे उन्होंने क्या है इतना इफ़ेक्टिव रिसाइकलिंग किया है अपने वेस्ट का कि अब वो क्या है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से वेस्ट मंगाते हैं क्या है, ताकि उसको क्या है उससे उनके इकोनॉमी को फ़ायदा होता है कि वेस्ट मटेरियल को वो क्या है डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव इररिपेयरेबल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। तो देखिए अभी जब से ये 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है और हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी डेवलप हुआ है। देखिए अगर आपने आज से 10 साल पहले कोई फ़ोन ख़रीदा था और वो क्या है बहुत सारे लोग हैं उसको रखते हैं, पर वो क्या है आपने क्या है अब वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो वो एक वेस्ट मटेरियल हो गया। तो बेसिकली क्या होता है डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं जैसे अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो उसकी रिसाइकलिंग के लिए क्या है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ प्रेजेंट होती हैं, है ना। पर हमारी जो कंट्री है यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, उनको हम मैनुअली रिसाइकिल करते हैं जो कि उसमें जो मेटल्स हैं वो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जो अब जिनको हम रिपेयर नहीं कर सकते ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। हम इनके जो हमारा वेस्ट है इसको सिर्फ इसका एक ही इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है कि हम इसको क्या करें रिसाइकिल करें, और रिसाइकिल एक अच्छे वे में करें, है ना, मैनुअली ना करें, क्योंकि मैनुअली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करेंगे तो उससे जो ह्यूमंस जो उन मेटल्स को टच कर रहा है उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है। Next we talk about agrochemical and other effect. Use of inorganic fertilizers and pesticide has been increased manifold due to green revolution for enhancing crop production and they are biomagnified in terrestrial organism. तो जब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का एक्सटेंसिव यूज़ हुआ
जिसमें एक DDT भी था। और इससे क्या हुआ कि जो हमारी पैदावार है वो तो इंक्रीज़ हो गई, पर उन क्रॉप्स में क्या हो गया, वो केमिकल्स आ गए और धीरे धीरे वो ह्यूमन पॉपुलेशन में आ गए, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। तो इसलिए हम इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर इन विच वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल्ड इन एज न्यूट्रिएंट फॉर अदर प्रोसेसेस टू अलाउ द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो, अगर किसी एक प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल बन रहा है तो वो दूसरे प्रोसेस में हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और इससे क्या है, हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम आ रही है और जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इट इंक्लूड्स बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। तो बी कीपिंग क्या है? जैसे मान लीजिए आप, कोई एक किसान है ना, उसके पास ज़मीन है, ठीक है, ओबियसली किसान के पास ज़मीन होगी सही, तो वो वहाँ पे क्या है, क्रॉप उगाता है, उसी के साथ वो क्या है, बी कीपिंग भी कर लेता है, एपीकल्चर भी कर लेता है। तो उससे क्या होगा, आप सब जानते हैं कि बी क्या है, बहुत अच्छा पॉलिनेटर है, तो उसका पॉलिनेशन बहुत अच्छा होगा जिससे उसको क्रॉप में फ़ायदा होगा। दूसरी बात, जो नेक्टर क्या है वो प्लांट से बीज इकट्ठा करेंगे, उससे क्या है, उसको हनी मिलेगा, वो हनी को भी बेच सकता है ना, ठीक है। उसके बाद जो ये जो उसने फसल उगाई या जो उसने क्रॉप उगाई, उससे जो भी वेस्ट मटेरियल लिया वो अपने क्या है, डेयरी मैनेजमेंट करता है, तो अपने जो बफेलोस हैं, काउस हैं, उनको फीड कर सकता है, ठीक है। या फिर उसी को जो वेस्ट मटेरियल मिला, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल मिला, उसको वर्मी कंपोजिटिंग में यूज़ कर सकता है, जिसमें हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, जिसको हम बाद में दोबारा जाके फील्ड में यूज़ करते हैं। तो यही क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। नेक्स्ट वी हैव रेडियो एक्टिव वेस्ट। न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ टू सीरियस प्रॉब्लम। तो जब शुरुआत में न्यूक्लियर एनर्जी आई तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत कम वेस्ट होता है, पर बाद में पता चला कि जब हम इससे एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं, जो बाकी जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। और कोई भी रेडियो एक्टिव चीज़ क्या कर सकती है, डीएनए में चेंजेस ला सकते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है और ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है। जैसे आपने नाम सुना होगा मैडम क्यूरी का, उन्होंने भी रेडियो एक्टिविटी पे वर्क की थी और उनको भी क्या है, कैंसर हुआ था इसी वजह से, और उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे कि चिरनोबिल आइलैंड, 3 माइल आइलैंड, वहाँ पे एक्सीडेंटल लीकेज हुआ है ना, और उससे क्या है, वो पूरा इलाका ही क्या हो गया है। चिरनोबिल पे तो एक वेब सीरीज़ भी बनी है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि वो जो पूरा इलाका ही है, अब उसको सालों तक वहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं जा सकता क्योंकि वो हाईली रेडियो एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद जो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, इसका सेफ डिस्पोजल का तरीका ये बहुत ही क्या है, सेंसिटिव है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कंक्रीट के अंदर डाल के क्या है, सॉइल में डालते हैं, ठीक है। तो द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट इज़ एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एज इट कॉज म्यूटेशन टू अकर एट वेरी हाई रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया। Next we talk about greenhouse effect and global warming. The greenhouse effect is a naturally occurring phenomena that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere due to increase in concentration of carbon dioxide and methane gas. Global warming is caused due to greenhouse effect. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हमारे आसपास जो मेन ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ये क्या करती हैं, जो सन से रेडिएशंस आती हैं उनको क्या है, ट्रैप कर लेती हैं, जिससे अर्थ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही एकदम से ठंडा नहीं हो जाता है, काफ़ी हद तक क्या है, गर्म रहता है, जिससे हम लोग इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। पर क्या हुआ कि जैसा कि हम ऑटोमोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं और उनसे क्या है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, है ना, तो क्या हो रहा है कि जो हीट है वो ज़्यादा अमाउंट में ट्रैप हो रही है, जितनी ट्रैप होनी चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में ट्रैप हो रही है, और उस वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार क्या है, बाढ़, सुनामी, इनकी सिचुएशंस होती रहती है। जैसे अभी रिसेंट में जैसे ट्रेजिकली आसाम में बाढ़ चल रही है, तो वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है।
ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम जो फॉसिल फ्यूल हैं उसको कम कर दें, ठीक है। हम क्या है जो अपनी एनर्जी यूसेज है उसको क्या है इम्प्रूव करें, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करें, ऐसी मशीनरी बनाएं जिससे कम फ्यूल में हमें ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी मिले, ठीक है। उसके बाद हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन कम करें, है ना, जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको नहीं काटें, उनको रहने दें क्योंकि वही बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद रिफॉरेस्टेशन करें। रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ से हमने ऑलरेडी प्लांट्स, हमने गलत एक्टिविटीज़ करके प्लांट्स हटा दिए, वहाँ पे दोबारा जाके प्लांट्स लगाएं, है ना। और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ को कम करें, है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कम होगा, तो उससे क्या होगा, जो डिमांड है, जैसे अब आप देख लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो सबको ऑटोमोबाइल्स चाहिए क्योंकि ज़रूरी है, नीड है आज के टाइम की। तो जितने ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स उतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न और उतना ही ज़्यादा क्या है ग्रीन हाउस गैसेज बनेंगी। तो इसके लिए जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा क्या है डिमांड होगी इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ओजोन डिप्लीशन इन द stratosphere. The thickness of ozone is a column of air from the ground to the top of atmosphere is measured in the term of Dobson unit. Due to increase of ozone degradation by chlorofluorocarbon used in refrigerant, ozone in stratosphere is decreased. Sorry, you can remove this. Increased की जगह decrease कर देना। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या किया है कि ओजोन का जो ओजोन बेसिकली हमें क्या है हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है जो सन से आते हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशंस, और ये एक बिल्कुल कवर की तरह है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। तो अगर जहाँ पे हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में, वहाँ पे अगर ओजोन रहे तो ये हार्मफुल होती है हमारे लिए, पर स्ट्रेटोस्फेयर में ये हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि ये हमें यूवी रेडिएशन से बचा रही है। तो अब क्या हुआ, हमने रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ्री रेडिकल क्लोरीन है उसने क्या किया, ओजोन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया, और वो एक कैटलिस्ट की तरह ब्रेक कर रहा है कि यूज़ भी नहीं हो रहा है और ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ता जा रहा है, जिससे ओजोन की थिकनेस है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और ये जो यूवी रेडिएशंस हैं ये अर्थ पे आ रही हैं, जिसके बैड इफ़ेक्ट्स हमें कैंसर, स्नो, ब्लाइंडनेस के फॉर्म में दिखने लग गए हैं। तो इसलिए हमें ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बिल्कुल ही बैन कर देनी चाहिए और हमें अपना ओजोन बचाना चाहिए। और इसी की वजह से एक ओजोन होल बन गया एंटार्क्टिका के ऊपर, जो कि आपको अगस्त, अक्टूबर और सितंबर के टाइम पे देखने को मिल सकता है। अब ये कोई आर पार का होल नहीं है, मतलब बहुत कम थिकनेस हो जाती है वहाँ पे ओजोन की। Ozone depletion is marked over the Antarctica region called as ozone hole. High dose of UVB, ultraviolet B, causes inflammation of cornea, cold, snow blindness, and cataract. Next we have deforestation. It is the conversion of forested area to non-forested one due to human activities like slash and burn agriculture, also called jhum cultivation, use of fertilizer and cutting of trees for industries and residential area. Deforestation का साफ साफ मतलब है कि एक फॉरेस्ट था उसको आपने काट दिया, अब वो किसी भी वजह के लिए काट सकते हो आप लोग। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसमें हम जंगल को जला देते हैं, उससे क्या है जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल में आ जाते हैं उस पर हम क्या है क्रॉप ग्रो करते हैं और निकल जाते हैं, है ना। तो खेती करने के लिए, रेजिडेंस बनाने के लिए हम क्या है बहुत सारे जो फॉरेस्ट है उनको काट रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यही क्या है डिफॉरेस्टेशन है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो उसके क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होंगे। आप फॉरेस्ट काट देंगे तो बायोडाइवर्सिटी, जो हमने पिछले चैप्टर में बात किया था, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और वो जो जिससे हमारा क्या है इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा और धीरे धीरे बायोस्फीयर भी इम्बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोलॉजिक जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, बारिश नहीं होगी, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहीं बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आ रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है तो नहीं हो रही। इवन चेन्नई एक ऐसी सिटी है जहाँ पे ये क्लेम कर दिया गया है कि अब बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, और जो ट्रीज़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो सॉइल को बाइंड करने के रखते हैं। अब क्या है जैसे पहाड़ है, पहाड़ पे क्या है लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, सॉइल इरोजन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी रूट्स हैं उन्होंने सॉइल को पकड़ के रखा हुआ था, पर हमने अब ट्रीज़ काट दिए तो वो सॉइल फ्री हो गई और वो खिसक जाती है, जिससे भी हमें क्या है नुकसान उठाना पड़ता है। और
इन द एंड जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो लास्ट में डेजर्ट हो जाएगा, और जो कि सॉइल क्या है, बैरन हो जाएगी, और फिर हम उस पर कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इसमें एक एग्जांपल है अमृता देवी जी का, जिन्होंने क्या है फॉरेस्ट, मतलब कोई राजा था, उन्होंने नया महल बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटने का वो दिया था, पर अमृता देवी जी ने और उनकी जो फैमिली है उन्होंने क्या अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी कि नहीं काटेंगे। पर क्या है, उस टाइम तो राजा के हुक्म थे, तो उस हिसाब से क्या है उनके साथ ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था कि उनकी डेथ हो गई थी पेड़ काटते वक्त। उसके बाद तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना, अपने फॉरेस्ट को बचाना, क्योंकि आने वाले टाइम में यही हमें क्या है नुकसान देगा, और ह्यूमन इस बात को जितना जल्दी समझ ले वो बहुत ही बढ़िया है। तो दिस इज़ द वीडियो गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।